विंडोज 11 कई हफ्तों से दुनिया के हर पीसी एंड गेमिंग रिलेटेड फोरम्स पर इसकी चर्चा चल रही है, इसके बारे में बात हो रही है. एंड आफ्टर अ लीक्ड बिल्ड ऑफ विंडोज 11 गॉट लीक्ड इन द वाइल्ड गॉट लीक्ड. Soon, Microsoft was also quick to officially reveal the Windows 11 in a special event. And my god, I haven't been this bored since Intel CES 2021 event. I mean, these guys took so much time talking about the stupid stuff and talked little to nothing about the important stuff that the engineers actually worked on. So, Tanmay, my writer, took his time watching the whole thing so you guys don't have to ruin your day with it. Hey everyone, gamers, streamers, and everyone else. My name is Sparsh Garg, and this is just another example of how many fucks these developers give about their promises before making them. Because last I remember, Microsoft had said that Windows 10 will be the last Windows ever. Oh well, they now have a new version and we have to talk about it. सबसे बड़े changes compared to Windows 10 in Windows 11 will be new UI, performance improvements, and पहली बार support for Android apps via Amazon's App Store, which is adventurous. Yeah, that's the best I can put it. New major UI changes will include new frosted glass look with rounded corners and many cool themes, which I am a fan of. Rounded corners, good. Improved writing with pen support. टच और ट्रैक पैड गेस्चर्स दोनों आप टैबलेट या लैपटॉप मोड में यूज कर सकोगे. सिंपली अगर तुम्हारे को टाइप करना हो तो टच स्क्रीन कीबोर्ड और फिजिकल कीबोर्ड ऑप्शंस कैन बी स्विच्ड बिटवीन सीमलेसली. इट्स टोटली योर चॉइस. स्टार्ट मेन्यू और सारे के सारे जितने भी बटन्स होते हैं दोनों की दोनों टास्क बार पे सेंटर्ड होंगे बाय डिफॉल्ट. But there are ways in which you can keep the taskbar on the bottom left corner of the screen like we have got used to over the years. Basically, this is Windows 10X जो कि MS Surface devices में use हो रही थी. Right? New widget menu like an Android phone for your horoscope and Candy Crush ads that we all have come to love over the years. नए logos, new file explorer window, cleaner typeface, नए modern wallpaper options which I personally couldn't give any fucks about because I use wallpaper engine, but they would definitely look good on a professional desktop. Windows 11 में Office 365 Sync integrated है. Windows Local Search still has unfortunately Bing as the default search engine, which I think is still gonna be as horrible as it has been over the years. But Van Shome, Linus from Linus Tech Tips, is seemingly hopeful about it. क्योंकि विंडोज सर्च एक टाइम पे ढंग से काम करता था. हाउएवर मेनी इयर्स बैक इट माइट हैव बीन. इट्स नॉट दैट माइक्रोसॉफ्ट को ढंग का सर्च बनाना नहीं आता है. दे जस्ट हैव नॉट बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स, व्हिच इज व्हाई इट सक्ड इन विंडोज 10 and Windows 8 as well. This is of course what Linus thinks about it, but I think that if they have not been doing this for the past many years, they still would choose not to do it. So, because at the end of the day, they still want their Windows, right? Their Windows to be the central thing. They don't want you to be able to or want to use Google Chrome or any other browser to browse internet. They just want कि हाँ भैया Windows में ही सारा का सारा काम हो जाए. At the end of the day, ये ही उनका ulterior motive है. Right? So, what do you think about this? Comment down below in the comment section. Comment करोगे तो वीडियो चलती है. So, make sure you do that. For now, moving on to the next whatever it is, Microsoft ने नया फीचर दिखाया है Snap Groups, which basically clubs together all the applications that you want to open simultaneously, जिससे तुम according to your preferences and will save कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम Steam पे कोई गेम खेल रहे हो और Discord यूज करते हो तो तुम एक गेम प्रोफाइल सेव कर सकते हो with both of these apps, जिससे जब जब तुम Steam खोलोगे Discord ऑटोमेटिकली खुलेगा साथ में. अगर आप एक फोटोग्राफर हो या कंटेंट क्रिएटर हो तो आप अपने काम अनुसार अपनी एक प्रोफाइल सेट कर सकते हो, इवेंट बेस्ड प्रोफाइल. जैसे कि कैमरा जैसे ही कनेक्ट हुआ अपनी फुटेज को इंजेस्ट करने के लिए तुम्हारे अडोबी के सारे ऐप्स खुल जाएंगे, विच आई थिंक कैन बी अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक बिकॉज हो सकता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं और मैंने सिर्फ कैमरा अपनी फुटेज इंजेस्ट करने के लिए अभी खोला है. आई वुडंट वांट कि सारे के सारे ऐप्स खुलने लग जाएं. आई मीन, I don't know, like of course with time this feature will
ऑल्सो मेच्योर और लोगों को ढंग के तरीके इसको यूज करने के पता लगेंगे. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. आई वोंट कमेंट ऑन दिस फीचर विदाउट यूजिंग इट. स्नैप लेआउट्स एक और एक फीचर है जिसके साथ सभी एप्स हमेशा सही लेआउट, राइट एस्पेक्ट रेशियो में स्क्रीन पर लॉन्च होंगे, विच इज अ ब्लेसिंग फॉर मल्टी मॉनिटर सेटअप यूजर्स. आई टेल यू, आई किड यू नॉट, दिस इज सच अ ब्लेसिंग. विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने वर्चुअल डेस्कटॉप में सुधार किया है जिससे आप बड़ी आसानी से वर्चुअल डेस्कटॉप टॉगलिंग कर पाओगे. स्पेसिफिकली पैंडेमिक में वर्क या लर्निंग फ्रॉम होम के लिए आप अलग अलग मोड्स सेट कर सकोगे, which sound like not a big change, but it really is gonna change your life if you use your PC like this, like I use. Trust me, it is gonna change my life. Microsoft Teams अब Windows में fully integrated है after they got rejected by Discord and they ditched Skype after many failed attempts at reviving it. Windows 11 have also integrated many gaming specific features जैसे कि support for DirectX 12 Ultimate, Direct Storage, Auto HDR और नया Xbox ऐप Windows 11 के लिए with Xbox Game Pass और xCloud game streaming support completely out of the box, which is a great news for the Indian gaming what do you call it community, because यहाँ पर लोगों के पास अच्छा पीसी बनाने के पैसे नहीं हैं और गेम्स खरीदने के पैसे नहीं हैं. So लेकिन पीसी जरूर है. अपना कोई भी एक बेकार सा पीसी यूज कर लो, उसके अंदर हर गर्मियों की छुट्टियों में जब भी तुम्हारे पास टाइम होता है, राइट, दिस विल बी लाइक मम्मी से बोलना, मम्मी गर्मियों की छुट्टियां, फुटबॉल की क्लासेस ज्वाइन करा दो, मम्मी गर्मियों की छुट्टियां, एक्सबॉक्स का xCloud ज्वाइन करा दो, थोड़ी सी मैं गेम्स खेल लूंगा, राइट. हमारे पास हर समय टाइम होता भी नहीं है. इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में थोड़ा बहुत जो टाइम होता है, थोड़े बहुत हमारे स्पेक्स होते हैं, एक छोटा सा पीसी होता है, हमारे को गेम खेलनी है. सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी. पेरेंट्स के लिए ऑन दी अदर हैंड दिस इज बैड न्यूज. और उसके अलावा इस चीज को यूज करने के लिए तुम्हारे को एक अच्छा इंटरनेट चाहिए होगा. विंडोज 11 के लिए भी इंटरनेट होना कंपलसरी है. सो यू नो, इन अ कंट्री वेयर तुम्हारे पास लेट अलोन हैविंग अ गुड पीसी, इंटरनेट कनेक्शन ढंग का होना भी एक बहुत बड़ी बात है. तो अपने पेरेंट्स को ये मनाना कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए पहले तो xCloud के लिए और Xbox गेम पास के लिए पैसे खर्च करो, उसके ऊपर से तुम्हारे को इंटरनेट अच्छा भी चाहिए 3 महीनों के लिए. क्यों नहीं बेटा, आओ, तुम्हारी जो होता है क्लास लगाते हैं, तुम्हारे को जो होता है बात करनी है तुम्हारे से. सो दिस माइट बी अ प्रॉब्लम, बट यू नो, इंटरनेट की स्पीड सस्ती हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है काम. सो जब तक ये चीजें आएंगी तब तक हमारे पास भी और ऑल्टरनेटिव्स होंगे इंटरनेट के. फिंगर्स क्रॉस, ऐसा मुझे लगता है. मूविंग ऑन, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर अब थर्ड पार्टी ऐप सपोर्टेड हैं जैसे एंड्रॉइड वाया Amazon's App Store. Also, for all of you filthy pirates, you can still sideload apps too, which you know, I would like to take a moment to talk about it. मतलब, you know, you remember the time when sideloading apps was just like, ये तो होता ही है, this was not considered a feature. Good old times, right? Moving on, in a desperate attempt from Microsoft to keep their store alive, उन्होंने devs को permission दे दी है to monetize their apps however they see fit, without Microsoft taking any cut out of the revenue that these apps will be creating through the in-app transactions. लेकिन as confirmed by Verge, ये games पर apply नहीं होता है. गेम्स को अभी भी एक कट देना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स दे हैव रीएडजस्टेड देयर रेवेन्यू स्प्लिट फॉर पीसी गेम्स टू 88-12 फ्रॉम 70-30, व्हिच इज गुड थैंक्स टू द इफेक्ट फ्रॉम द एप्पल एंड एपिक फ्यूड. माइक्रोसॉफ्ट क्लियरली चाहता है कि माइक्रोसॉफ्ट सारे बाकी के जितने भी स्टोर्स हैं उनके साथ जो होता है सॉफ्टवेयर लेवल पर कनेक्ट हो जाए, जैसे स्टीम और एपिक गेम्स और डिज्नी से, ताकि उनकी गेम्स और उनका कंटेंट जो होता है वो सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर द्वारा ही जितने भी कस्टमर्स हैं ब्राउज कर सके. जैसे उन्होंने Amazon ऐप स्टोर के साथ एक कनेक्ट बिठाया है अपने एंड्रॉयड ऐप्स के लिए. माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 का कोई ऑफिशियल डेट रिवील अभी तक नहीं किया है, लेकिन द वर्ज वॉज प्रोवाइडिंग अस विद अ हिंट ऑफ एन अक्टूबर रिलीज बेस्ड ऑन एन ईस्टर एग इन टीम्स मैसेज, जो कि तुम्हारे को विंडोज इवेंट जो हुआ था उसके अंदर दिखता है. वो मैसेज कहता है, एक्साइटेड टू टर्न इट अप टू 11, कांट वेट फॉर अक्टूबर. right? Microsoft has only officially said holidays for Windows 11 availability, but कंपनी के जो ऑफिशियल मार्केटिंग मटेरियल हैं, दे स्ट्रांगली हिंट्स at an
October 20th release date. But all of you Windows 10 users will have to wait for mid next year to upgrade your Windows 10 to Windows 11. Windows 10 के लिए जितने भी Windows 10 वाले लोग हैं उनको Windows 11 के लिए अगले साल का वेट करना पड़ेगा for a free upgrade. And that's not the end of bad news. There are some serious concerns regarding this release as well. First, users will need a Microsoft account and an internet connection to set up Windows 11 Home, जो कि मैंने पहले भी बताया, which is most likely to force you to buy a license. Secondly, the minimum requirements for Windows 11 are shocking. According to Microsoft, Windows 11 will only be supported by 8th gen or newer Intel CPUs and AMD Ryzen 2000 and newer CPUs. I think they will blame the vulnerability in CPUs like Spectre and Meltdown, जो दोनों को इफेक्ट करते हैं, which is completely valid. But users को choice देना जरूरी है, especially in the current environment. I mean, like तुमने 2017 में Ryzen 1000 खरीदा होगा, तो अब तुम्हारे को 2022 में सिर्फ और सिर्फ Windows 11 अपग्रेड के लिए अपना हार्डवेयर अपडेट करना पड़ेगा. Bullshit. I call bullshit. Microsoft ने Windows 11 में TPM यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स और UEFI सिक्योर बूट प्लेटफॉर्म पर पहली बार कंपलसरी किया है फॉर कंज्यूमर्स यूजिंग विंडोज. यूजुअली UEFI सिक्योर बूट और TPM जैसे फीचर्स OEMs यूज करते थे. आप अपने कंप्यूटर की कंपैटिबिलिटी जाकर चेक कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग द ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट PC हेल्थ ऐप. बहुत सारे कंप्यूटर्स ये चेक फेल कर रहे हैं और क्योंकि TPM चिप्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना कि अगर TPM 2.0 नहीं है तो नो Windows 11 फॉर यू इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग टू से इन द लीस्ट. अभी जिन लोगों को नहीं पता है TPM होता क्या है, वेल अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल इज अ सिक्योर माइक्रो कंट्रोलर दैट मैनेजेस क्रिप्टोग्राफिक कीज. TPMs can be used to store smart cards or biometric data, for instance, and are used as a platform integrity check. Sadly, Microsoft's move to require TPMs is already causing a global shortage of add-on TPMs cards and will force otherwise perfectly good hardware जैसे कि Ryzen 1000 या Intel के 7th generation के CPU to the e-waste bin just like that. Now, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय ये चीज पता लगी है कि कुछ रिसर्चर्स ने Windows 11 को Windows 10 के इंस्टॉलर को यूज करके TPM रिक्वायरमेंट बाईपास किया है और कुछ ने तो DISM जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डिप्लॉयमेंट टूल है उसको यूज किया है टू एडिट रजिस्ट्री कीज एंड सक्सेसफुली इंस्टॉल Windows 11 ऑन Windows 10 PCs विदाउट TPMs, जो कि पूरी खबर नहीं है, हमारे को पूरी तरह से नहीं पता है. वी डू नॉट नो हाउ ट्रस्टेड दिस इज, सो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज तुम ऐसे काम ना करो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी वेरी प्रोफिशिएंट इन सॉफ्टवेयर. इन कंपनीज ने दैट इज AMD, Intel, Microsoft ने अपने खुद का हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है अंडर प्रो ब्रांडिंग. टीम ब्लू का V Pro, टीम रेड का AMD Pro, और इसलिए Windows 11 को TPM सपोर्ट निकालना जरूरी था फॉर बिजनेस कस्टमर्स, ताकि वो बिजनेस कस्टमर्स को यकीन दिला सके कि हमारा प्लेटफॉर्म भी सेफ है. इस टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट ओरिजिनली माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने AMD के साथ अपने Xbox One कंसोल्स डिजाइन के अंदर किया था, जो अभी PC में पहली बार आने वाला है विद लिमिटेड कैपेसिटी. This insight is based on original conference given by Tony Chen, जिसका तुम्हारे को लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. I will of course keep a close track on all the developments regarding this, so subscribe and don't forget to press the bell icon if you don't want to miss that in the future videos. And sharing it with your PC enthusiast friends would help the channel a lot as well. Make sure you comment your views about this in the comment section because that helps the video grow. And join my Discord server if you have any problems related to your next PC build. वहाँ पर बहुत एक अच्छी community है that will help you with all of your PC problems. As of now, that is all we know about Windows 11. जैसे जैसे नए फीचर्स आते रहेंगे I will make videos about them. इन सारे फीचर्स में से किसी एक के बारे में if you want a video, then of course do tell me in the comment section. I'll see you next time with another great video on this channel. This is Perchgurt signing off. Bye bye, tata, see you and peace. Don't forget to follow me on social media, especially Twitter. वहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी चीजें डालता रहता हूँ जिनके बारे में शायद मैं वीडियो ना बनाऊँ. Bye bye.